हाय यू गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि स्वाति आज अपनी वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसे कर रही है। सो लेट मी टेल यू गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिकॉज़ एक पिछले वीडियो की तरह जो आपने बहुत लाइक किया था और बहुत प्यार दिया था, उस वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे एंड हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत धमाल मचाने वाले हैं। और इस बार कुछ नया भी होगा अपार्ट फ्रॉम Q&A। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाले वीडियो में पता चलेगा। अब स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। Hello Swati, what's up? Hi Swati, how are you? I hope you're doing absolutely fine. Hi Swati, hi people, hi everyone. Hi Swati. Hi Swati, thanks for inviting me to your YouTube channel. Hi Swati. Hi Swati. Hi Swati. Hi, this is Milan. This is Sailesh. Hello everyone, I am Dheeraj. I am from Udaipur, Rajasthan. Hello everyone, this is Sanjay. I'm Swati's colleague and she's one of my best friends. My name is Dilnaz. I'm Swati's friend. We go back to the late 90s and early 2000s. We have been to the same school. We studied together and we are good friends. And I basically know Swati because we work for the same company in Bangalore. मेरा नाम आशुतोष है और मैं यहाँ 1 साल से बैंगलोर में हूँ और TCS में मजदूरी करता हूँ। Navneet, I am from Balangir, Odisha. Okay, so for the people who don't know me, my name is Nikunj and I'm a colleague of hers. नाम जान के वैसे भी क्या करोगे? जय जगन्नाथ। तो वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो ये वीडियो में Q&A सेशन तो होगा ही, लेकिन उसमें कुछ मिर्च मसाला भी होगा। पिछली बार की तरह सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे। द नेक्स्ट सेगमेंट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स टंग ट्विस्टर बिकॉज यू गाइज लव्ड इट सो मच इन द प्रीवियस वीडियो, बट इस बार का टंग ट्विस्टर और थोड़ा ट्विस्टेड होगा। एंड द थर्ड सेगमेंट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजेस। तो हम लोगों ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ कॉल्ड चैलेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा बस आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यह रहा, What is the most funniest way that you have been injured? Okay, the most funniest way I've been injured. It has to be the time when I was like 4 or 5 years old. So I had a tricycle and I thought it would be really cool to ride it down the stairs, and I did. I did not end well. In gym. It's a funny story. Yeah, because I was just running in the treadmill. I saw a girl, beautiful girl, and by seeing her, I just lost my balance and I just fell down from the treadmill. I had a lip injury and I don't remember much of it, but yeah, it has got to be the funniest injury till now. And I just injured my elbow in that. Yeah, that's the most interesting way that I have injured myself. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में फिर से नहीं आएगा। Which movie star is your secret crush? क्रश? Well, जो मेरी क्रश है वो बहुत लोगों की क्रश होगी। As per my secret crush is concerned, मला झिଅ मिळुनाहाନ୍ତି तुमको हीरोइन पड़ीची। हाउ इनकी भाषा में बोल, लंड समझ नहीं आ रहा किसी को कुछ। I have got a huge crush on Disha Patani. I would say that Alia Bhatt is my secret crush, and I mean from her first movie, that is Student of the Year. So the moment I saw her, she was so cute, so charming. भाई हमने डिसाइड कर लिया, सारी एवरीवन सब मेरी क्रश है। Like she was fabulous. I just forgot about her acting as well in that movie. But I think later on she did a lot of diversified roles and diversified movies. So I can say that she has the potential to become the next upcoming big name in the Bollywood industry. So she is one of my secret crush in Bollywood. बस मेरी ये वाइफ ये वीडियो ना देख ले यार, बहुत डरने पड़े। जिसका जो बोल रहा है बोल दो भाई। हाय गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैलेंज। तो चैलेंज में तो मुझे बहुत मज़ा आता है।
तो क्या करने वाले हैं हम लोग, पहला चैलेंज तो ये है कि हम लोगों ने कुछ बच्चों को बोला कि हम लोगों का ओडिया डेलिकेसी ट्राई करें। तो आम ओडिया कौन कि आमे टिके पखाड़ भात प्रिय, मतलब हम लोग पखाड़ भात एक रेसिपी है जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गर्मी का सीज़न जब आ जाता है तो पखाड़ भात एक चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द ओडिया हाउस में बनता ही बनता है। तो वो कैसे बनता है तो वो मैं नहीं बताऊंगा, हम लोगों ने रेसिपी लिख के इन लोगों को दिया था। ये लोग खुद अपने घर में बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे इसका रेसिपी। हे स्वाति, योर चैलेंज हैज़ बीन एक्सेप्टेड। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ओडिशा का बहुत ही फेमस फूड दही पखाल, जिसे लोग बेसिकली ओडिशा में गर्मियों के सीजन में कंज्यूम करते हैं एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर योर स्टमक। तो चलिए हम लोग दही पखाल का इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉल ओवरकुक्ड राइस, आधी बॉल दही, आधी चम्मच सौंफ और एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स का मिश्रण है यहाँ पे, थोड़ा सा तेल छौंक लगाने के लिए, 1/3 ऑफ द ग्लास ठंडी पानी, बारीक कटी हुई कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से कड़ी पत्ते, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मैंगो जिंजर, सूखी लाल मिर्च, बीच से कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट। तो सबसे पहले हम थोड़े सा अपने ओवरकुक्ड राइस में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग सारे राइस को मिक्स करेंगे। फिर हाफ बाउल दही को इस प्रकार से लेकर के अपने राइस में डाल करके मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाए तो हम बारीक कटी हुई धनिया इस प्रकार से लेकर के इसमें अच्छे से मिला देंगे। फिर हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट को लेकर के मिक्स कर देंगे। जब हमारा राइस हमारे दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो अब हम लोग छौंक का प्रिपरेशन करेंगे। छौंक के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे तवा लेंगे, तवा में हम लोग हाफ बाउल तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने का वेट करेंगे। वंस ये तेल गर्म हो जाए तो हम लोग कड़ी पत्ता यहाँ पे डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फिर मैंगो जिंजर और बीच से कटी हुई मिर्ची को इस प्रकार से इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ बारीक कटे हुए मैंगो जिंजर भी इसमें डाल देंगे और सूखी लाल मिर्च को इस प्रकार से इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा फिर मिलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका रंग बदल ना जाए। एट लास्ट हम लोग आधी चम्मच सौंफ और एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स का मिश्रण किया हुआ एट लास्ट इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं छौंक प्रिपेयर हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे और हम गैस की नॉब ऑफ कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, जब छौंक हमारा ठंडा हो जाए तो उसे हम अपने प्रिपेयर्ड ओवरकुक्ड राइस में मिला देते हैं और पखाल हमारा रेडी है। मैं जूम करके आपको दिखलाता हूँ। तो इस प्रकार पखाल हमारा रेडी है। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर दिस ऑसम चैलेंज। और दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा कि आप भी इस ओडिशा के बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल फूड को आप भी अपने घर पे बनाएं। अरे वाह, मुझे तो पता ही था ये ओडिया डिश जो पखाड़ भात है ये सबको अच्छा लगने ही वाला है, बिकॉज ये डिश ही ऐसी है यार। ये मतलब ये हम लोगों का ट्रेडिशनल डिश है, पसंद कैसी नहीं आएगी।
द ब्यूटी ऑफ दिस चैलेंज वाज कि हम लोगों ने ये चैलेंज उन लोगों को दिया जो लोग उड़ीसा को बिलोंग नहीं करते, तो मे बी उन लोगों ने ये डेलिकेसी कभी खाया नहीं होगा, तो वो लोग ने खुद ये रेसिपी बनाया और खुद ट्राई किया। ये रेसिपी बहुत ईजी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। थर्ड क्वेश्चन, टेल दिस टंग ट्विस्टर 3 times विदाउट स्टॉपिंग। सम क्या है ये? समझ के समझ को समझो, समझ मुझे नहीं समझ आ रहा है, तुम लोग ही बोलो। Oh, is it a tongue twister? Oh, I like tongue twisters. Nice. I don't know, but I'll just give a try for that. ମୋ ଜୀବ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ଏଥିରେ। Here you go. समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझने समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। Let's give me a second try. समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी नजर में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। It's like a rap song. Thank you. Peace out. Yes. Just send me gift to me. फोर्थ क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी नहीं आएगा, ये रहा। What moment sticks out for you as the most embarrassing moment or experience ever? So obviously, I won't be telling you the most embarrassing thing that has happened to me so far. One of the most embarrassing I can remember right now is Because that is something that remains a secret to me forever, and nobody knows about that. there are many. I swear I have many embarrassing moments. The most embarrassing moment of my life, I can tell you one small instance that happened to me when I was in 11th or 12th class, I guess. So there was this one event where I had to present something, and the event was very serious, and the topic of discussion was also very serious. And I was very confident because I had prepared the content and everything very carefully, and I was confident that it will be good for me. The moment when I went on the stage, something really bad happened. Farting in the public place. Yes, I did fart in a public place. So I slipped on the podium and I literally fell on the podium, and everyone started laughing, and Once upon I called my teacher, Mom, please answer sick. And all eyes and all nose and all ears were on me. I grabbed a lot of attention. Say what? Which was embarrassing for me, definitely. Very embarrassing. It was something that is really embarrassing till date, but I still think of that one instance, and it's extremely funny for me. Thank you so much guys. Let's move on to the next challenge. तो हमारा दूसरा चैलेंज ये तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। लड़कों को हम लोगों ने बोला लड़कियों की तरह हील्स पहनो और कैट वॉक करके दिखाओ। देखो हमारे लड़के कुछ कम नहीं।
तुम क्यों इतना हंस रहे हो? दिमाग खराब कर दिया इंसान ने. I hate you for this, but you're my friend. I love you, and I'm gonna do this. वाह वाह. हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा ना आपके मोबाइल पे, ये सिर्फ मेरे दिमाग में आएगा जो आपको बोलना है. व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड और एंजॉयड डूइंग इन दिस लॉकडाउन? सफल एंजॉय वो तो कुछ नहीं किया हम, बिकॉज अब ये लॉकडाउन ने सबका काट. For me, one of the best thing I have learned and enjoyed during this lockdown. So there were a lot of new things that I did during this lockdown. तो बाहर जाओ, बाप रे पुलिस मारता है बहुत, तो कभी नहीं बाहर. Is multitasking, because I have always been that kind of guy who always believed in one step at a time, taking one goal at a time. Which was cooking. A lot of people are learned how to cook during this lockdown, which is also something that I also did, and it was a good experience. I won't say that I learned a lot of things, but at least I started with the basics, and that is a good start. लर्न में हमने कुछ नहीं सीखा मतलब काम तो बहुत सारा रहता है ऑफिस का, सो इसलिए क्या सीखेंगे हम, इतना सा काम जो सैटरडे संडे भी वो ले जाते हैं. So before this COVID situation, I was a big procrastinator. Apart from doing my office works, I don't used to do a single thing, not even a laundry, not even any kind of cooking. I was always a particular guy who used to do that thing. But during this lockdown, I learned multitasking, starting from working from my home, doing my office work, plus doing my household chores, cooking, cleaning and everything. Second thing that I did was exploring more in the fields of space, because I was always fascinated about how space explorations work and how these things are arranged and what is the importance of such things. और यूट्यूब में हम देखते हैं कि बहुत सारे डालते हैं, स्टेटस पे डालते हैं कि डालगोना कॉफ़ी और तुम्हारा हो गया गुपचुप, वो तो हम नहीं सीखे हैं, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत दूर का बात है, और डालमा बनाना हम सीख गए पूरा इस लॉकडाउन पे. But now, as I'm in a flat living alone, my flatmate is also not here, so I used to do a lot of things. So this really taught me time management. The other thing that I started focusing on was my photography and writing skills, which is I won't say that I explicitly started reading about it or I explicitly started watching videos of how to do it, but then this is something that I thought that I will improve, and I think I'm doing good so far. I was a host cook. Not even I able to eat my own food. But now I am promoted from host to bad cook. Now I can eat my own food, right? So this is one of the good things that's been happened in this. And I'm loving it, enjoying it, and everything. अभी फिर से और एक टंग ट्विस्टर आ रहा है. ये मुझको आता है, ये हम लोगों ने मूवी में देखा था ना, कभी खुशी कभी गम, वही वाला है. ए लड्डू, चांदनी चौक में एंट्री नहीं ले सकते. क्यों? बस नहीं ले सकते. और अगर एंट्री लेनी है तो ये क्या की लेनी है? कहो. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. कहो. चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई. चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी छपरे चांदनी चामच और चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई. चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को
और ये लास्ट चैलेंज है दोस्तों, ये चैलेंज मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली दिखाऊंगा। देखो वो पप्पा पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? I can't see. I can see. I can. वो घड़ी दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। वो नहीं, ये। मजा आ रहा है ना दोस्तों? तो इन सब के बीच हम लोगों के पास एक और टैलेंटेड बंदा है, तो वो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस करेगा, आप खुद ही देखिए। तेरी रब से नहीं बना है यारों से मेरा जहां, किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। तेरे नक्शे तेरे मजहब जरूरत से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। तेरी चाहत तेरी आहट बाबत से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। Thank you so much you guys for watching this video, and if you like the video, please do. So if you like the video, please press the like button. Please like, share and subscribe our YouTube channel. And subscribe to Swati's channel. And So do like, share and subscribe. Thank you. And guys, do watch Swati's videos. She really makes an inspirational videos. and also share this video with all your friends. And like this video and subscribe to the channel, and do comment in the below and bless her with lot of good comments and appreciation. और अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू You guys for watching this video, and thanks to all the guys who were working on their weekdays but still made this possible in such a short duration of time. Thank you for accepting the challenges, and thank you so much for making it for me. I am so grateful to have you guys. From next video I'm going to do a new thing, that is giving a shout out to one of the person who have liked, shared and commented on my video and subscribed to my channel. So if you do that, you have the chance that I'm going to shout out your name on my video. And as the guy said, if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. And for more content, stay tuned. Bye bye. Bye bye. Namaste. Love you India. Love you Odisha. Jai Jagannath.